Now, since 2019, NewsX has been pushing for the cause of the PoJK residents, some of whom live in exile in other parts of India and those who are stuck under barbaric Pakistan rule. Now, India has set aside 24 seats in the Jammu Kashmir Assembly and 7 seats in the Indian Parliament for representation of PoJK refugees. Now, these seats have been frozen for decades, but the time has come to defreeze these seats and have representation from PoJK in the Assembly and the Parliament. The first step towards reclaiming PoJK is to have representation of the people who will serve as a voice of over 6 lakh PoJK exiles and refugees who are part of India's who are part of India. Now, NewsX has launched a change.org petition for the cause of the people of PoJK and Kashmiri Pandits. Let's understand this particular petition and how to sign it. Now, this is in fact on your screens. The first page, if I can take you through, of the change.org, when you enter immediately, you will see a page that provides details of what the particular petition is. If you can just take this on screen, you will be able to see that the first page in fact shows you our campaign. Now, this is what the home page of the change.org petition page looks like. Now, the first page of course shows you what the petition is. Let me just read out a couple of points of the action plan as well. Now, here it says, of course, the plan is listed below. It says 7 seats in Parliament reserved for POK areas should be unfrozen. The second line says 24 seats in erstwhile J&K Assembly for POK areas should be unfrozen. 2 of 7 unfrozen seats should be reserved for Kashmiri Pandits. 4 of 24 seats should be unfrozen and provided to POK residents. Now, of course, then elections of unfrozen seats should be held from POK refugees. Displaced persons residing in India should be given these particular seats. This is, of course, the petition. Now, of course, how to sign it, to show you how exactly to sign this particular petition. Now, first you enter your name. If you look to the right side of the page, you'll find how many people have signed it. At this point, around 20 people have signed it. We're aiming at around 100 signatures first, and then we go up from there. The first thing you would do is to enter your name. Say at this point, I'm entering my name here, and then you enter your last name as well. Once you do that, you will have to enter your email ID so as to not duplicate any sort of signatures. I'm just putting in our official email ID. Now, once this is done, you will have to then click on either, you'll have to of course select the place that you're from, your location. Now, we've kept this at Delhi, India, and then you'll either choose to display your name and comment on this petition. Now, if you'd like to say something for this cause, if you'd like to share your thoughts on this cause, you can also do that. If you'd like to sign it anonymously, you can also do that by unclicking or unchecking this box. Your signature will remain anonymous. Your email ID or name will not be shown. But if you're okay with displaying your name and you'd also like to share a comment, you can click on that and then click on sign this petition. Now, when you click on sign this petition, since I had checked display name, the email ID will be displayed and it will be added. Now, here of course you'll also be asked if you can chip in 160 rupees to get this petition on the agenda. Now, that is of course to promote the particular petition if you'd like the petition to be taken forward. Now, of course, another thing is, yes, you can chime in 160 rupees to ensure that this petition is taken forward, or you can share it manually yourself as well. Now, if I'm going to click on, I'll share this instead at this point. Now, when you click on that, you will be asked to tweet it. You can either tweet it, you can share it on Facebook, you can send an email. You can also copy the link and share it on any other social media app that you prefer. Now, at this point, 12 signatures have been added to this petition thanks to people who shared it. Now, this is 12 signatures, 20 signatures earlier, and now 12 signatures of people who had shared it later on. On the right side, you can then see the people, their action. They've shared it through a link, through WhatsApp. They've shared it through email, and you have several activities there. Now, this is of course the final step. Now, if you copy the link and continue, you're done with the 3 steps of how to sign this particular petition. Now, let me take you through the very first page of this petition again. Now, what we're learning of course at this point is that this particular petition shows you what NewsX's
NewsX's petition is all about when it comes to the representation of PoK exiles. Now let me go to the guests who are joining me at this point. Advocate Bhavishya Sudan, who's a refugee of PoK. I'm also joined by Colonel Twinder Singh, who's a refugee of PoK as well, and I'm also joined by Rajiv Chunni, who's also a PoK refugee. Thank you for joining us this morning. Now we're discussing NewsX's launch of this particular campaign. We're also discussing what Fill the Seats means to PoK refugees and also to Kashmiri Pandits. Firstly, my question to Bhavishya Sudan. Sir, now first of all, when we're talking about this campaign, how important do you think it is for an online campaign to be taken forward, to be pushed forward, so that more people have access and are able to actually do something about it, raise their voices in a manner that will actually make a difference? Bhavishya Sudan, sir, if you're able to hear me. All right. Let me move to Rajiv Chunni. In fact, if I can get your thoughts on this, sir. Now, my same question to you. Why do you think it's important for an online campaign to be launched at this point so that more people can come forward and do something about it? When it comes to the younger generation, online campaigns have proven to be one of the most effective ways that they're able to raise their voices. देखें, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जो आपने उठाया है जी। और आप तो हमेशा से हमारा सहारा बने हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी जब वो अपनी ज़िंदगी की पटड़ी से गाड़ी उसकी उतर जाती है तो दोबारा वहाँ लौटने के लिए या तो कोई ऐसे नुमाइंदे हों जो सरकार तक आपकी बात को पहुँचाएं, या कोई ऐसा माध्यम हो जैसे आप लोग हैं, आप हमारी बात पहुँचा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपकी इस कैंपेन ये रंग भी ला रही है, और जो आपने ये नया चलाया है कि किस तरीके से एक पेटिशन ऑनलाइन की जाए और लोग उसको खुद चलाएं, उसको आगे बढ़ाएं, और जो लोग आगे ले जाना चाहते हैं वो उसमें अगर 160 रुपए देकर आगे उसको और ले जाना चाहते हैं, वो अपने तौर पर वो करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम है जो एक उपेक्षित समाज, जिसको सिर्फ वहाँ से उठाया गया आज से 75 साल पहले और यहाँ लाकर पटक दिया गया और ये कहा गया कि इलाके को खाली कराएंगे और आप लोगों को पुनः आपके घरों में वापस भेजेंगे। जो हमारी चल अचल संपत्तियां थी वो सभी पार पड़ी हैं, उसका एक ढेला भी मुआवजा नहीं दिया गया, ये कहकर कि अगर हम आपको यहाँ पर आपका पुनर्वास करते हैं तो एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। और इस तर्क से क्या हुआ कि ये जो 17 लाख लोग हैं आज, ये गरीबी की रेखा से नीचे रह गए और कोई ड्राइवर, कोई क्लीनर, कोई हेल्पर, कोई लेबरर, इस तरह से मेजॉरिटी में ये लोग काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि आज तक इनको कोई आवाज नहीं दी गई, इनको ताकत नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि जो काम आपका चैनल कर रहा है आफरीन है, मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि इतना बढ़िया काम आपने किया है। और आज सरकार को भी ये बात, मैं सरकार को दोषी नहीं मानता, क्योंकि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए या तो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, लेकिन ये लोग विफल रहे और आपने उसका बीड़ा उठाया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये खाली मेरे पुनर्वास के साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इसके साथ और भी बड़ी सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे आप देखें कि कितनी रियासतें थी जिनका विलय हिंदुस्तान में हुआ और सारी जगह शांति है सिवाय जम्मू कश्मीर के। ये ठीक है कि विलय में देरी हुई, लेकिन उसके बाद जो काम किए जाने चाहिए थे वो काम नहीं किए गए। हर एक मुद्दे को आहिस्ता आहिस्ता कर कर उसकी तरफ पीठ मोड़ ली गई, उसको छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि आज जो काम आप कर रहे हैं ये खाली मेरे पुनर्वास से जुड़ा नहीं है, उन 17 लाख लोगों की उन उम्मीदों से जुड़ा नहीं है, ये देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। क्योंकि आज सारा हिंदुस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उसकी पूरी की पूरी खेती, उसका पूरे की पूरी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से होती है। आज अगर सी पैक वहां बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो कुछ उन रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है जो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि कोई ऐसा, किसी को कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई किसी भी शख्स को, मैं समझता हूं कि जब तक हमारे लोग विधायक या मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना दिए जाते, हमारा लोकस नहीं बनता था
कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जी मंचों पर इस बात को उठाते। तो मैं धन्यवादी हूं, आपने हमें मौका दिया। हालांकि यहाँ जो लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको जी ईमानदारी के साथ, ये बात लोगों को पता लगनी चाहिए कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, या जो उस समय इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो तबाही और जी बर्बादी का हमारा इतिहास लिखा, उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ शासन कर गई। शेख अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे, आगे उनके पोते उमर अब्दुल्ला साहब, आगे पड़पोता भी तैयार था अगर जी 370 और 35A को हटाया ना जाता। लेकिन मेरी 3 पीढ़ियां जो हैं वो तबाह और बर्बाद कर दी गई। और मैं समझता हूं कि पता नहीं क्या न्याय है कुदरत का भी, जिसने इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, जो हमारी तबाही का, बर्बादी का, खाली मेरी तबाही और बर्बादी का नहीं, इस देश की तबाही और बर्बादी, अगर आज पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में ना होता, हमारी सारी इंटरनेशनल बॉर्डर होता पूरा कारगिल से लेकर राजस्थान तक जी या कहीं और आगे तक, मैं समझता हूं कि आज यहाँ कोई समस्या ना होती। ये सारी समस्याओं की मूल जड़ में जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, लगभग 60 वर्षों तक इन लोगों ने, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन किया है, लेकिन कभी मेरी बात नहीं की। हालांकि फारूक अब्दुल्ला बार बार बयान देते हैं कि जो इलाका पाकिस्तान के पास है वो उसे दे दिया जाए, जो हिंदुस्तान के पास है वो रख ले, और जो LOC है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए। जी हम पूछते हैं इनसे कि मुझे ये बताइए कि घर तो मेरा है, चल अचल संपत्तियां मेरी पार पड़ी हैं, मैंने कभी चिंता नहीं की इस बात की कि चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन मैंने कहा जो देश फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं। हम कभी भी अपने किसी अंग को कटने नहीं देंगे। लेकिन फारूक साहब ये कहते रहे, और उन्होंने ये कभी बात नहीं कही जी कि जो वहां से विस्थापित 17 लाख लोग हैं, इनको भी, इनका पुनर्वास होना चाहिए। ये कभी उनके मुंह से ये बात नहीं निकली। इलाके की बात करते हैं, क्या करेंगे वो? एक जी मेंबर पार्लियामेंट और बना लेंगे क्या? वो जी 4 विधायक और बना लेंगे? तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा पूरा समाज आपका ऋणी है, ये देश आपका ऋणी है कि आपने इस कैंपेन को चलाया और आज आप इस मुकाम तक ले आए। मैं अपने सारे समाज को, उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया, देश को ये बात कहूंगा कि इस पेटिशन में शामिल होइए, और ये पेटिशन आगे तक जाए और इसका नतीजा निकले, ताकि मेरे लोग जो हैं वो उनकी आवाज बने, और वो खाली अपनी बात करने के लिए आवाज नहीं मांग रहे, वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जितनी दुश्वारियां हुई हैं, जितनी दिक्कतें हुई हैं, जिन लोगों ने मुसीबतें खड़ी की हैं, चाहे वो पंडित नेहरू से लेकर शेख अब्दुल्ला तक जो थे, उन सभी को एक्सपोज किए जाने की जरूरत जी है। मैं तो कहता हूं एक कमीशन बनना चाहिए जी जो इस बात की जांच करे कि पाकिस्तान तो दुश्मन देश था जिसने हमारे से सब कुछ छीना, हमारा इलाका छीना, लेकिन अंदर कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे? जी ये जी इस सारी पॉइंट चीजें पे आज सामने आनी चाहिए। इस पॉइंट पे मैं भविष्य सूदन जी को भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका जो इश्यूज़ हैं वो ही पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। भविष्य सूदन जी, आपका थॉट्स क्या है कि जो पेटिशन साइन करने से यंग इंडिया को भी ये मुद्दा आगे जाएगा कि जो POJK रेसिडेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनका जो इश्यूज़ हैं वो उनके ही रिप्रेजेंटेशन से आगे आएगा? कर्नल मोदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सुन पा रहा हूं। जी जी, आप बोलिए, जो रिप्रेजेंटेशन है क्या वो अभी इस पेटिशन से भी आगे जा सकता है? स्पेशली यंग इंडिया को ये पता चल जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जहां रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जो बहुत सारे कम्युनिटीज़ अभी आगे आके मांग रहे हैं, और POJK रेफ्यूजीज़ को भी ये मिलना चाहिए। टू स्टार्ट विद, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज तक हमें जो वहाँ से घर बार छोड़ के आ गए हैं उनको एक स्टेटस दिया गया है शरणार्थी। मैं शरण किसकी आया हूँ? मैं अपने देश में आया हूँ, मैं शरणार्थी नहीं हूँ। ना मुझे रेफ्यूजी बनाया गया, ना मुझे कोई और स्टेटस दिया गया, जिसकी वजह से मैं एक नॉन एंटिटी सी बन के रह गया। ये तो मैं कहूँगा कि जम्मू वालों का बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने हमें बाजू खोल के आओ जी कहा, जगह दी रहने के लिए, खाने के लिए, और उनके ही खाना पीना अपने हाथों से हमें दे दिया। अभी सबसे पहले मैं ये
बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि 75 इयर्स हो गए हैं और हम अभी तक नॉन एंटिटी रह गए। आप 48 इयर्स में चले जाएं और देखें 1948 में फ़लस्तीन का विभाजन हुआ, उन्होंने इजराइल बना के फ़लस्तीनियन को घर से बाहर निकाल दिया। पहला काम हुआ कि उनको रिफ्यूजी बना दिया जी। रिफ्यूजी बनने के साथ साथ ही द कंप्लीट जो वर्ल्ड है उनकी मदद के लिए आ गए। हमारे यहाँ जैसे चुनी जी ने पहले बोला, हमें यहाँ किसी ने पूछा भी नहीं जी। मैंने पहले भी एक जगह बोला था कि हमने क्या किया कि यहाँ जब आए तो बहुत बड़ी मेहरबानी की, कोई थोड़ी बहुत ज़मीन दी। ज़मीन देते ही थोड़े दिन के बाद ऑर्डर आ गए कि ज़मीन सिर्फ उसको दी जाएगी जो टिलर है। अब मैं अगर एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, मैंने अपने 100-200 रुपए की नौकरी में अपने बच्चे पालने हैं, मैं टिलर बनूं या मैं नौकरी करूं, तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा था वो भी हमसे छीना गया। उसके बाद हम अपनी मेहनत से, हम अपनी लगातार कोशिशों से खड़े हुए, बच्चों को पाला और किसी जगह जाके अपना मकान बनाया। हमें ये 75 साल में मुझे ये नहीं समझ आती कि हमें क्यों नहीं रेफ्यूजी का स्टेटस बनाया गया। वो इसलिए कि हमने वापस जाना है। अगर वापस जाना है तो 75 साल तो बहुत ज़्यादा थे। मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर हूँ। हमने बहुत पहले ये एक कई जगह ऐसी बनी है कि हम जाके अटैक करके उनकी जो लाइफ लाइन है वो कट ऑफ करें। लेकिन ये गवर्नमेंट्स की बात है, सोल्जर्स का तो सिर्फ काम करना होता है। और हमें इसमें यही महसूस हुआ कि जैसे चुनी जी ने बोला कि जिसका बच्चा भी रोए तो तब माँ दूध देती है। हमारा कोई नहीं था तो उन्होंने बोला इनको छोड़िए, इनकी बाद में बात करेंगे जी। वो बात करते करते 75 साल हो गए। मैं सोचता हूँ अब बहुत वक्त आ गया है जब बातें करने का ख़त्म हो जाए और हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए सबसे पहले, ताकि मेरी बात सुनने वाला कोई हो जिसको मैं जाके बताऊं कि भैया ये हमने ये सीटें जो मांगी हैं ये अपनी आवाज़ खड़ी करने के लिए बोली है। चाहे वो मुजफ्फराबाद है, चाहे वो मीरपुर है, चाहे वो पुंछ है, ये सारे बेचारे अपने घर बार छोड़ के एक एक हाथ में रोटी लेके निकले थे। वो रोटी भी रास्ते में खाएगी और उसके बाद वो भूखे प्यासे यहाँ पहुंचे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत आइडियल समय है, आइडियल टाइम है कि गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक ऑफ गिविंग अस रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम अपनी उस जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मेरी तरह ही दुख तकलीफ सह के आज मेरा मेंबर पार्लियामेंट या मेरा बनेगा और मैं उसको जाके अपना दुख दिखा सकूं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.